नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। ABTA और ABPTA की जानिब से यहाँ बनपुर पुराना हाट में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सृष्टि नगर की ख्वातीन ने जिनेक्स को हरा दिया, स्कोर बराबर। बैनुल अक़वामी यौम-ए-ज़बान के मौका पर आसनसोल में दानिश्वरों की जानिब से एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद। अखबार भी आपका, कानून भी आपका, अदालत भी आपकी, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। यहाँ सतपुरिया कॉलोनी में महिला समिति की जानिब से खून का अतिया कैंप लगाया गया। इलेक्शन से पहले सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जेडीयू के साबिक एमपी अली अनवर कांग्रेस में शामिल। वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इंतखाबात से पहले बड़ा झटका लगा है। जेडीयू 21 फरवरी को कांग्रेस में शामिल के साबिक एमपी अली अनवर हो गए। जुमा को उन्होंने रियासती कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की रुकनियत ली। बिहार कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इनका पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौका पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सरबराह अलका लांबा भी मौजूद थी। आपको बता दें कि अली अनवर तवील अरसे से जेडीयू से नाराज़ थे। 2017 से पार्टी के खिलाफ उनके बयानात आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से हम बागी हो गए थे। पिछले 7 सालों में बीजेपी ने भी मुझे पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने उसूलों पर कायम रहने वाला शख्स हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुतासिर होकर कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। जब हम पार्टी से अलग हुए, पार्टी 43 सीटों पर रह गई। पहले नीतीश कुमार इंजन का काम करते थे, लेकिन अब वो कोच बन गए हैं। इनका इंजन कोई और है, कोई और उनकी रहनुमाई कर रहा है। यहाँ सिरीपल्ली में कॉमरेड महादेव मुखर्जी की याद में संस्कृत उत्सव मनाया गया। अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्टों के मुताबिक खून का अतिया हेल्थ चेकअप कैंप का भी सम्मेलन, रक्श मुकाबला, संगीत मुकाबला यहाँ मुनक़द किया गया था। आइए सुनते हैं আজকের যে পরিবেশ তাতে আমরা চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতা বলতেই পারি যে ওদের পা ভেঙেছে মস্তানে, পুলিশ ভেঙেছে হাত, বিনা বিচারে জেলে পুড়েছে গান্ধী রাজার চেলা, ঘর ফিরবার বেলা। পা ভেঙেছে, হাতও গেছে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত, লাল যাচ্ছিল লালই আছে, মন ভাঙাছে শক্ত। এর কবির নাম হলো চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। এবং এরপরে আমরা সমর সাহাকে ডাকছি কবিতা পাঠের জন্য। আজকের কি প্রোগ্রাম? আজকে মহাদেব মুখার্জি জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা, নকশাল নেতা, তার 16তম মৃত্যুবার্ষিকী। মহাদেব মুখার্জি ছিলেন একজন, যখন কমিউনিস্ট পার্টি, যখন সিপিএম তৈরি হয়নি তখন থেকেই তিনি আছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির যিনি ফাউন্ডার, জন্মদাতা মুজাফফর আহমেদ কাকাবাবু আসানসোলে পাঠিয়েছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। তো কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিনি তখন থেকে করছিলেন। অ্যাকচুয়ালি কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে, আর্মড স্ট্রাগলের মাধ্যমে
ভারতবর্ষের বিপ্লব হবে। কিন্তু সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বলল টেম্পোরারি আমাকে পার্লামেন্টের ব্যবস্থাকে ইউজ করতে হবে, তখন ওরা ভোটে এলো। এই সময় চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হলো। এক পক্ষ বলল চীন আক্রমণ করেছে, এক পক্ষ বলল চীন ভারত আক্রমণ করেছে। এই নিয়ে ভাগাভাগি হয়ে 1964 সালে সিপিএম তৈরি হলো। তো আমার মহাদেব মুখার্জি তখন সিপিএমে। তারপরে 1967 সালে যখন চারু মজুমদারের গঠন পার্টি যখন কৃষক আন্দোলন হলো নকশালবাড়িতে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন হলো, সে সময় জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি চালিয়ে অনেক কৃষকরা অনেকে মেরে দিচ্ছে। তারপরের দিনে পাল্টা আক্রমণ করে ওই পুলিশ ইন্সপেক্টরকে খতম করেছিল এবং সেই নকশালবাড়ির আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। তারপর দুবার জেল পালিয়েছিলেন এবং এখানে মেহনতি মানুষের জন্য তিনি সারাক্ষণ লড়াই করেছিলেন। তিনি ছিলেন সারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসিস্ট লেনিনিস্টের জেনারেল সেক্রেটারি। তাই তার 16তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা কবি সম্মেলন, রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি এবং 16 বছর ধরেই করে আসছি এবং আজকেও তাই করছি। কারণ তাকে মনে রাখতে হবে শোষণহীন যে সমাজ ব্যবস্থা স্বপ্ন আমরা দেখি। আমরা মুখে বলি অনেক কিছু যে না আমরা সবাই সমান, কিন্তু এখানে দেখা যায় সবাই নিজের নিজের আখের গুছাবার ধান্দা করছে। তাই জন্যে জাত পাতহীন বর্ণহীন সবাই যাতে আমরা মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারি, মানবিকতা যাতে আমাদের মধ্যে থাকে, কোনো বড়লোক গরিব না থাকে, সেই আন্দোলনের নেতা মহাদেব মুখার্জির স্মরণ সভা আজকে আমাদের। আপনার পরিচয়? আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি। आम मुसाफिरों के सहूलत के लिए 3 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ 3 सेकंड क्लास कोचेस का इजाफा। आसनसोल मकबूल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल सेकंड क्लास कोचेज़ में इजाफा एक जारी इक़दाम है जिसका मकसद मुसाफिरों के लिए सफ़र के मजमूई तजुर्बे को बेहतर बनाना है। इसी मुनासबत से साल भर टिकटों की ज़बरदस्त मांग के जवाब में ईस्टर्न रेलवे ने दर्ज झेल ट्रेनों के साथ इजाफी 3 जनरल सेकंड क्लास कोचों को बढ़ाने का फ़ैसला किया है। 3 इजाफी जनरल सेकंड क्लास कोचेज़ 13506 13505 आसनसोल दीघा आसनसोल एक्सप्रेस के साथ 23 फरवरी 2025 से 17 अगस्त 2025 तक आसनसोल रवाना होंगी और 23 फरवरी 2025 से 17 अगस्त 2025 तक दीघा से रवाना होंगी। ट्रेन 10 बोगियों के बजाय 14 बोगियों के साथ चलेगी। 3 इजाफी जनरल सेकंड क्लास कोचेज़ 22330 22339 आसनसोल हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस के साथ 24 फरवरी 2025 से 23 अगस्त 2025 तक आसनसोल से और 24 फरवरी 2025 से 23 अगस्त 2025 तक हल्दिया के लिए रवाना होंगी। ट्रेन 10 बोगियों के बजाय 14 बोगियों के साथ चलेगी। 3 इजाफी जनरल सेकंड क्लास कोचेज़ 22332 22330 आसनसोल हल्दिया आसनसोल एक्सप्रेस के साथ 24 फरवरी 2025 से 23 अगस्त 2025 तक आसनसोल से और 24 फरवरी 2025 से 23 अगस्त 2025 तक हल्दिया के लिए रवाना होंगी। ट्रेन 10 बोगियों की बजाय 14 बोगियों के साथ चलेगी। 13511 13512 आसनसोल टाटा आसनसोल एक्सप्रेस के साथ 3 जनरल सेकंड क्लास कोचेज़ 23 फरवरी 2025 से आसनसोल से रवाना होगी और 23 फरवरी 2025 से टाटा से रवाना होंगी। ABTA और ABPTA की जानिब से यहाँ बनपुर पुराना हाट में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस मौका पर मौजूद मुअज्जिज़ीन में ABTA के उम्मीद युति घोष, ABPTA के राखी नारायण चटर्जी, गौन नाटिया सिंह, विपुल सेन गुप्ता और बहुत से दूसरे मौजूद थे। आइए इसकी कुछ झलकियां देखें। আজকের যে পরিবেশ তাতে আমরা চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতা বলতেই পারি যে ওদের পা ভেঙেছে মস্তানে, পুলিশ ভেঙেছে হাত, বিনা বিচারে জেলে পুড়েছে গান্ধী রাজার চেলা, ঘর ফিরবার বেলা। পা ভেঙেছে, হাতও গেছে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত, লাল যাচ্ছিল লালই আছে, মন ভাঙাছে শক্ত। এই কবির নাম হলো চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। এবং এরপরে আমরা সমর সাহাকে ডাকছি কবিতা পাঠের জন্য। ভালো আছো সব, সেই তো ফুলার রোড, মেডিকেল ছাত্রাবাস, আরো দূরে ওই সেই রমনার প্রান্তর। মনে আছে সব, মনে আছে হৃৎপিণ্ডের সবগুলো পেশির ঝংকারে একটি মধুর গান। সেই বাড়িতে কে বলছে তুমি তো বেঁচে আছো আমার মাঝে, তুমি বেঁচে আছো এখনো 16 কোটি বাঙালির মাঝে। তোমার হাত ধরে এসেছে আমার মা ডাকখানা, সে তোমাকে আমি কি করে ভুলে যাবো এখনই।
जेसीडी बाईपास लाइन की तामीर के लिए जेसीडी से बैद्यनाथ धाम के दरमियान मेमो ट्रेन की सर्विस की मनसूखी। जेसीडी बाईपास लाइन के काम के सिलसिले में देवघर के करीब RUR अंडर रेल पुल की तामीर के लिए रेलवे ने जेसीडी जंक्शन और बैद्यनाथ धाम के दरमियान ट्रेन खिदमात को मनसूख करने का फैसला किया था। इब्तदाई तौर पर 4 महीनों के लिए ट्रेन सर्विस मनसूख कर दी गई थी। 24 अक्टूबर 2024 से 24 फरवरी 2025 तक, और अब मजाज अथॉरिटी की तरफ से उसे मजीद 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ट्रेनों की मनसूखी 63169 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63151 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63153 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63155 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63157 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63159 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63161 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63163 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63165 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63167 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63165 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63767 जेसीडी बैद्यनाथ धाम मेमो, 63154 बैद्यनाथ धाम मेमो, 63156 बैद्यनाथ धाम मेमो, 63158 बैद्यनाथ धाम जेसीडी, 63160 बैद्यनाथ धाम जेसीडी मेमो, 63162 बैद्यनाथ धाम जेसीडी मेमो, 6364 बैद्यनाथ धाम जेसीडी, 6366 बैद्यनाथ धाम जेसीडी मेमो, 63168 बैद्यनाथ धाम जेसीडी मेमो। मज़ीद ये कि 63562 और 63570 बैद्यनाथ धाम आसनसोल मुख्तसर तौर पर जेसीडी से शुरू होगा। सृष्टि नगर की ख्वातीन ने जिनेक्स को हरा दिया, स्कोर बराबर। इंटर सोसाइटी विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमा को आसनसोल के सृष्टि नगर और डीसी में सृष्टि नगर और जैन एक्सोटिका की ख्वातीन टीमों के दरमियान एक मैच खेला गया। जिनेक्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 49 रन बनाए। मैच बहुत ही सनसनीखेज रहा। मैच की आखिरी गेंद तक सृष्टि नगर की टीम ने हदफ हासिल कर लिया और 10 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर मैच जीत लिया। इसके साथ ही सृष्टि नगर ख्वातीन ने जिनेक्स को शिकस्त देकर स्कोर बराबर कर दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। इस मौका पर सृष्टि नगर के ग्रुप पर अपर्टी मैनेजमेंट हेड विनय चौधरी, जेनेक्स के सेक्रेटरी शशि भूषण सिंह, पोरेंदु चौधरी, विनय महारिया वगैरह मौजूद थे। काबिले ज़िक्र है कि पिछले मैच में जिनेक्स ने सृष्टि नगर को शिकस्त दी थी। गैर कानूनी कानकनी में मनहदम, एक जाँ बहक। आसनसोल के कुल्टी थाना के तहत बोदरा इलाके में चलने वाली गैर कानूनी कोयले की कान में गिरने की खबर आई है।
जिसमें गैर मुसद्दका इत्तला मौसूल हो रही है कि गिरने की वजह बहुत से मजदूर थे जो गैर कानूनी तौर पर कोयला काट रहे थे, जबकि कोयला चोर जिसकी शनाख्त विक्रम के नाम से हुई है, बताया जाता है कि कान से मजदूर की लाश निकालकर फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि रोहित, जब्बार और मोहम्मद शमीम शदीद जख्मी हो गए। कोयला चोरों ने उसे जल्दबाजी में इलाज के लिए कुल्टी के नर्सिंग होम में दाखिल कराया था, ताहम पुलिस की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक नहीं की गई है। बैनुल अक़वामी यौम-ए-ज़बान के मौका पर आसनसोल में दानिश्वरों की जानिब से एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद। हर ज़ुबान, हर सकाफ़त को यकसा प्लेटफॉर्म दिया गया। मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने अपनी अपनी ज़ुबानों में सकाफ़ती प्रेजेंटेशंस पेश किए। बंगाली, हिंदी, उर्दू, उड़िया और दीगर ज़बानों में रक़्स, मौसीकी और नज़में पेश की गईं। इस प्रोग्राम में मशहूर, मारूफ, माहिर तालीम सुप्रिया राय समेत कई दानिश्वरों ने शिरकत की। बीजेपी लीडर और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन ने कहा कि हर ज़ुबान का अपना हुस्न और वर्षा होता है और उसे महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़बान के आलमी दिन की ये तकरीब इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी एहतराम की अलामत बन गई। अखबार भी आपका, कानून भी आपका, अदालत भी आपकी, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। मीडिया, इंतज़ामिया और कानून पर हुकूमत के असर व रसूख का इल्ज़ाम लगाते हुए सिन्हा ने कहा, हुकूमत जो चाहे सुर्खियों में आ जाए। उन्होंने तनज़्ज़ा अंदाज में कहा कि हुकूमत को गंगा सागर मेले के इंतज़ामात के बारे में वज़ीर आला ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, जहां आम लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई थी। सिन्हा ने कहा कि हुकूमत 144 साल बाद महाकुंभ का दावा कर रही है, जबकि मजहबी स्कॉलर्स के मुताबिक ये तकरीब वक्फे से होती है। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत असल अदाद व शुमार को छुपा रही है और कुंभ के दौरान बढ़ती हुई आलूदगी को नज़रअंदाज कर रही है। यहाँ संतुड़िया कॉलोनी में महिला समिति की जानिब से खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस कैंप में ख्वातीन के साथ साथ मर्दों ने भी खून का अतिया दिया। ख्वातीन जोश व खरोश से आगे आईं। 20 लोगों ने खून का अतिया किया। इस मौका पर सपना चटर्जी, ट्रेजरर सबरी घोष, रीना गोस्वामी, डिप्टी घोष, पंपा घोष, रीता सरकार, रूमी पाठक और सरावनी दास मौजूद थीं। अब है समय मूवमेंट के एसएमएस का। साइलेंस इज फिल्ड विथ आंसर्स इफ यू आर एबल टू लिसन। अगर आप सुन सकते हैं तो खामोशी जवाबात से भरी हुई है।